ایئرلائنس آپ جان چکے، ابھی آپ کو بریکنگ دیں۔ ملتان اور گردونواں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ موٹر وے M4 M5 پر دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث حد نگاہ 10 میٹر تک رہ گئی ہے۔ مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں جو دھند کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، اور دھند کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ بھی متاثر ہونے کے بعد 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے، جس سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنے، اور ٹریفک کی روانی کی اگر بات کریں تو ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ موٹر وے M5 جو سکھر کی طرف جاتی ہے اور موٹر وے M4 جو پنڈی بھٹیاں کی طرف جاتی ہے، دونوں موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے موٹر وے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوگ لائٹس کا زیادہ سے زیادہ جو استعمال ہے وہ کیا جائے۔ اگر میرا کیمرہ مین نعیم قریشی آپ کو دکھا سکے تو اس وقت شدید دھند کے جو مناظر ہے وہ ملتان سمیت چینی گوٹ بستی ملوک بہاولپور ٹرینڈا احمد پور شرکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال آباد رحیم یار خان اور صادقہ آباد میں بھی اسی طرح کے مناظر جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، اور دھند کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ متاثر ہونے کے بعد 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ موٹر وے ترجمان کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، اور اگر نکلنا بہت ضروری ہے تو مناسب فاصلہ جو ہے وہ گاڑیوں کے درمیان۔ وسیم شہزاد آپ کا شکریہ۔ آپ کر رہے تھے ڈی جی خان میں دھند کے ڈیرے، شدید دھند کے بعد حد نگاہ 0 ہو گئی۔ ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے محسن الملک سے۔ محسن بتائیے گا تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے؟ خان میں رات کے اس پہر انتہائی صورتحال ہے۔ دھند کی وجہ سے 0 ویزیبلٹی اس وقت بتائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے ہائی وے کی جانب سے میسیجز بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ شام 8 بجے کے بعد دھند جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی، جس کے بعد اب تک رات کے اس پہر بھی دھند ہے، شدید دھند ہے۔ اگر میں ڈیرہ غازی خان کے مضافات اور شہر کا حصہ دکھاؤں تو بالکل 10 میٹر کے فاصلے پر یہ کھمبا ہے، موبائل ٹاور ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ شدید دھند میں اس وقت جو ویزیبلٹی ہے اس وقت حد نگاہ ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ٹھنڈ بھی ہے، خنکی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو صورتحال اس وقت خراب ہے وہ ہائی وے کے اوپر ہے۔ N70 کو اس وقت مکمل طور پر اعلانات کر کے بند کیا جا رہا ہے ہیوی ٹریفک کے لیے، اور خاص طور پر جو موبائل سرولنگ ٹیمیں ہیں ان کو موو کیا جا رہا ہے ہائی وے کی جانب سے، جبکہ مقامی پولیس اور دیگر جو فورسز ہیں ان کو بھی اس وقت ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ BMP فورس اور ملیشی فورس جو ہے یہاں پر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر جو سخی سرور کے بعد پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بھی بعض مقامات پر اس وقت دھند ہے، تو ہیوی ٹریفک جو کہ کوئٹہ کی طرف جا رہی ہے یا بلوچستان کی طرف سے آ رہی ہے اس کو مقامی جو ہوٹلز ہیں، سرائے ہیں، وہاں پر روکا جا رہا ہے اور اجتناب کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ شدید دھند میں ڈرائیو نہ کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اور جو لوگ بھی ہائی وے کے اوپر ہے وہ اپنی فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ یہ تمام تر میسیجز اس وقت سپریڈ ہو رہے ہیں، لیکن سیزن کی پہلی شدید دھند جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں آج مکمل طور پر دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت کافی زیادہ جو ہے پینک ہے۔ خاص طور پر انڈس ہائی وے کی بات کی جائے، سنگل روڈ ہے جو کہ کراچی کا اور پشاور کا اہم شاہراہ سمجھی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ہیوی ٹریفک موو ہوتی ہے، تو اس علاقے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اجتناب کیا جائے۔ ڈیرہ غازی خان کا جو علاقہ ہے، میدانی علاقہ بھی ہے، دریائی علاقہ بھی ہے اور پہاڑی علاقہ بھی ہے، تینوں علاقوں میں اس وقت تینوں طرح کی جگہوں پر جو ہے وہ دھند ہے، شدید دھند ہے، ٹھنڈ ہے، اور خاص طور پر ڈرائیورز کو اجتناب کہا جا رہا ہے کہ ڈرائیونگ نہ کریں، ہیوی ٹریفک کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ محسن آپ کا شکریہ۔ اب ہوگی بہاولپور کی فضا بھی خوشگوار، صحت مند ہوگا ماحول۔ محکمہ ماحولیات نے 257 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرا دیے۔ نوابوں کے شہر میں تمام بھٹے چلنا شروع، تمام بھٹوں کی انسپیکشن اور ویریفیکیشن جاری ہے۔ بہاولپور کی فضا بھی خوشگوار، صحت مند ہوگا ماحول۔ محکمہ ماحولیات نے 257 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرا دیے۔ نوابوں کے شہر میں تمام بھٹے چلنا شروع، تمام بھٹوں کی انسپیکشن اور ویریفیکیشن جاری۔ ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر بھٹوں کی تصدیق کریں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رفیق کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 300 سے زائد بھٹے ہیں جن کی ٹیگنگ کی گئی۔ اس وقت 257 بھٹے چل رہے ہیں جن پر بلور نصب کر دیے گئے ہیں۔ تو بہاولپور میں جو ہم نے جیو ٹیگنگ کی تھی وہ 311 بھٹے آئے تھے اس جیو ٹیگنگ کے اندر، لیکن اس میں سے 257 فنکشنل تھے اور باقی جو بھٹا جات تھے وہ 2 سال 3 سال سے بند پڑے ہوئے تھے، وہ نان فنکشنل تھے۔ تو جو 257 بھٹا جات کا ہم نے وزٹ کیا، پھر ان کو ڈائریکشنز دی
और वक्तन फवक्तन सर्वे करते रहे। हमारे साथ इंतजामिया का मुकम्मल ताउन रहा। उन्होंने कहा कि खिलाफवर्जी करने पर 37 मुकदमात भी दर्ज किए गए। जनूबी पंजाब भर में बहावलपुर टॉप पर है। हम गाहे बगाहे भट्टा जात के साथ मीटिंग भी करते रहे और उनको मालकान को बुलाकर तंबीह भी करते रहे और कुछ के ऊपर 37 FIR का इंदराज भी कराया गया और जिसके नतीजे में इंतज़ामिया की मेहनत और महकमा माहौलियात की मेहनत के साथ जो तमाम भट्टा जात हैं 257 जो फंक्शनल हैं उनके ऊपर बलोर लग गए हैं। उनके ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब शहर मुल्तान में तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई हिकमत अमली बना ली। अहम चौकों और शाहराहों पर कैंप्स लगा दिए गए। मुल्तान शहर में बड़े तजावुज़ात माफिया से किस तरह निमटना है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई हिकमत अमली बना ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंसदाद तजावुज़ात टीम ने अहम चौकों और शराहों पर कैंप्स लगा दिए। घंटा घर चौक और रजाबाद चौक समेत कई अहम चौकों पर लगाए जाने वाले कैंप्स में अमला हर वक्त दस्तयाब होगा। बाकायदा अहम सड़कों को मॉनिटर किया जाएगा। एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है। इसकी कामयाबी के बाद इसको हम और वसी करेंगे। हर चौक पे, हर रोड पे ये कैंप लगाए जाएंगे जहां अमला मौजूद रहेगा। शहरियों की बर वक्त शिकायत भी दूर की जाएंगी। चीफ ऑफिसर रेगुलेशन मलिक इशफाक के मुताबिक शहर में कई सालों से मुसलसल तजावुज़ात का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस साल तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमला और गाड़ियों की कमी के बावजूद तजावुज़ात ऑपरेशन भरपूर जारी हैं। 1962-63 मॉडल की गाड़ियाँ हैं जो अक्सर खराब रहती हैं, ठीक कराने में टाइम ज़ाया हो जाता है और अमला भी हमारे पास शॉर्ट है। इसके बावजूद हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ और उसके बाद सिटीजन पोर्टल की शिकायत हैं, शहरियों की रिडर्सल है, उस पर एक शॉर्टेज अमले की वजह से वहाँ भी जाते हैं और पूरी कोशिश होती है कि शहरियों को शिकायत न हो। अब देखना यह है मेट्रोपॉलिटन की ये नई हिकमत अमली किस हद तक कामयाब होती है और तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन होगा या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर दूसरे रोज भी एहतजाज पर हैं। मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए, DC ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया। हमें रिपोर्ट करें कि आसिम सिद्दीक। शेख ज़ैद अस्पताल के डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हो सका। एहतजाज के तीसरे मरहले में दूसरे रोज मुलाजमीन अस्पताल से बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच गए। तनख्वाह के हसूल के लिए खूब नारे लगाए गए। 800 से ज्यादा एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन को पिछले 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। पहले एहतजाज पर 1 माह और दूसरे एहतजाज पर 1.5 माह की तनख्वाह दी गई। मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली है कि तनख्वाहों के इजरा की कोशिश नहीं की जा रही। कमेटी रिपोर्ट के बाद मुलाजमीन को तनख्वाह देने का वादा किया गया मगर 1 माह से कमेटी रिपोर्ट ही नहीं आ रही। 12 ईयर से ज्यादा मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हो गए हैं और इस वक्त हमें अब पिछली 3 मंथ्स की पेज भी नहीं मिली और नेक्स्ट भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ नहीं हमें पता चल रहा कि क्या हमारे साथ इन लोगों ने करना है। हमने इनसे मुतालबा रखा था कि गवर्नमेंट से भी और इंतजामिया से भी, DC साहब भी थे कि ये ना मसला मुस्तकिल तौर पर हल करें। पेशेंट भी सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल की जो है ना वो कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। मेहरबानी करें, रोज रोज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गर्मी और सर्दी में अपने बच्चों को सड़कों पे लेके आए। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन की नौकरी का तजदीद नामा और तनख्वाह जारी की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको ब्रेकिंग दें। सनावा में मियांवाली रोड पर गन्ने से लोड ट्राली उलट गई। 2 घंटों से रोड पर ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक की वजह से मुसाफिर परेशान है। मियांवाली रोड पर गन्ने से लोड ट्राली उलट गई। 2 घंटों से ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक की वजह से मुसाफिर परेशान है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मियांवाली रोड पर गन्ने से लोड ट्राली उलट गई। सनावा से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर गुज़श्ता 2 घंटों से ट्रैफिक बुरी तरह से जैम है और ट्रैफिक के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात का वक्त है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है और ऐसे में ट्रैफिक की वजह से मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। 2 घंटे से ट्रैफिक जैम है और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मियांवाली रोड पर गन्ने से लोडेड ट्राली उलट गई। लैया में तलबा यूनियन की बहाली के लिए नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने कलमा चौक पर एहतजाज किया। शमें भी इस मौका पर रोशन की गईं।
कलमा चौक पर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा जमील बुज़दार, जुल्फ़कार बलोच, मुबशर खान और दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि तलबा यूनियन की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने कहा कि मुल्क में तबकाती निज़ाम का खात्मा किया जाए, GDP का 6% तालीम पर खर्च किया जाए, तालीमी इदारों में तलबा को हरासा करने के खिलाफ मौसर कानून साजी की जाए, तालीम फ्री की जाए और प्राइवेट तालीमी इदारों में फीसों के इजाफे पर पाबंदी लगाई जाए। तलबा ने कहा कि तालीमी इदारों में आबादी के लिहाज से इजाफा किया जाए और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं। मुल्तान के बासियों के लिए एक और परेशानी, चीनी की कीमत फिर बढ़ने लगी। 2 हफ्तों के दौरान 80 रुपए से 95 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। उल्टी हो गई सब तदबीरें। मुल्तान में चीनी की कीमत कम होने के बजाय बढ़ने लगी। 2 हफ्तों के दौरान 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 95 रुपए किलो तो हो गई है। पहले ये कुछ कम हुई थी, अवाम के अंदर कुछ बेहतरी आई थी काम के अंदर, लेकिन अब फिर महंगी हो गई है। अब क्या करें, गवर्नमेंट ने हमें तो आटा, चीनी और घी की कीमतें ज्यादा बढ़ती जा रही है। होलसेल मार्केट में 100 किलोग्राम की बोरी 9,000 रुपए की हो गई। शहर की मार्केट में चीनी 95 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत कम होने के इम्कानात थे, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क में चीनी नहीं है या चीनी का बहरान है या शुगर मिलें बंद हो गई हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, उनका कोई हमें पता नहीं चल रहा कि क्या चीजें चल रही हैं, ये मोनोपोली है क्या है। शहरियों का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान से अभी भी अच्छी तवक्कुआत है। उम्मीद है आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाहरुख आलम कॉलोनी के बाहर गंदगी और कूड़े के ढेरों का मामला। तफरीह के लिए आने वाले शहरी भी गंदगी की वजह से फैलने वाले ताफुन से परेशान हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शहर मुल्तान की तफरीही मकामात ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। पार्कों के दाखिली रास्ते पर मौजूद कूड़े और गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहर के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाहरुख आलम कॉलोनी के वाहिद पार्क के बाहर कचरे के ढेर पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि एक अरसे से पार्कों की सफाई नहीं हुई। कूड़े के बायस इलाके में बीमारियां जन्म ले रही हैं। मुल्तान का ये मेन मरकज है जो कि यहाँ पर सैलो तफरीह के लिए लोग आते हैं और इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ अपनी सेहत के लिए आते हैं। ये साथ ही कूड़े के ढेर आप देख रहे होंगे सर, ये लगे हुए हैं, यहाँ आग लगा दी जाती है। ये साथ सब कोठियाँ हैं, मकान हैं और डॉक्टरों की दुकान है। मरीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। घर के सामने 24 घंटे सफाइयां करते हैं, सफाइयां करा करू के भी ताफुन इतना फैला हुआ है, आलूदगी है, बच्चे हमारे खांसी नजला से बीमार हुए पड़े हैं। तर्जुमान PHA का कहना है कि पार्कों के दाखिली रास्तों पर सफाई के इंतजामात का जायजा ले लिया गया है। शाह शम्स पार्क के बाहर कूड़े के ढेर की वजह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कंटेनर था, जो अब हटवा दिया गया है। पार्कों की सफाई के लिए वर्कर्स को भी खुसूसी हिदायत दे दी गई है। बिल्कुल वहाँ पर कूड़े का इशू जो है काफी अरसे से मौजूद है। पहले हमने कोशिश की थी, इसे सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है और वहाँ पर लोग सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए आते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्कों के गिर्द कूड़े और गंदगी के ढेरों को जल्द अज जल्द हटवाया जाए। PHA मुल्तान की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है कि पार्कों के तरफ से जल्द कूड़े को हटा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा भी या नहीं। कैमरामैन हारून के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। मियां वाली की ऑफिसर कॉलोनी मसालिस्तान बन गई। स्ट्रीट लाइट है, ना ही सीवेज सिस्टम, जबकि सड़कें भी पुख्ता नहीं की गईं। बिजली कम और ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक अशिया भी जल गईं। मियां वाली ऑफिसर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सहूलियात न होने से रिहायशियों को परेशानी का सामना है। मकीनों का कहना है कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट न है। दरख्तों की शाखें तारों से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। बिजली के काम ज्यादा होने से कई बार कीमती एशिया भी जल गई हैं। वापडा के मसाइल हैं हमारे के ऑफिसर कॉलोनी में दरख्त लगे हुए हैं, सफेदा के दरख्त लगे हुए हैं और ये अक्सर तारों के ऊपर गिरते रहते हैं। हमारे घरेलू अशिया भी कई दफा जल चुकी हैं और ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं। रिहायशियों ने बताया कि कई साल पहले ऑफिसर कॉलोनी में गैस पाइप लाइन बिछाई गई थी, मगर ताहाल कनेक्शन नहीं लगाए गए, जबकि कॉलोनी की सड़कें भी पुख्ता नहीं हैं। दूसरी जानिब जिला भर में तरक्याती काम जारी हैं। कोई रोड नहीं बना हुआ, वही पुरानी गलियां पड़ी हैं, पुराने रोड टूटे फूटे पड़े हैं, लेकिन कोई हमारा ये गलियों में काम नहीं हुआ है। और दूसरा नंबर पर गैस के कनेक्शन हमें अभी तक नहीं मिले। काम तो सुन रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला हमें गैस का।
ऑफिसर कॉलोनी के रिहायशियों ने सहूलियात देने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। ऑफिसर कॉलोनी मियांवाली में सहूलियात का फुकदान है और मकीनों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इस हवाले से कोई परवाह नहीं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। हेलमेट न पहनने वालों के चालान होंगे। यासिर मजीद की रिपोर्ट। खबरदार, होशियार, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल मत चलाएं। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ईदगाह चौक पर दर्जनों शहरियों के चालान किए। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को भी रोका गया। हेलमेट जो लोग यूज नहीं कर रहे तो उन्हें हम वार्निंग भी दे रहे हैं और जो इनकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्रवाई का मकसद दौरान सफर हादसात की रोकथाम है। शहरियों के बहाने भी अब नहीं चलेंगे। मुझे पता है कि इसका नुकसान है, सॉरी, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर 100 रुपए का कवर लगा लेंगे, 10-12 हजार इसकी कीमत है। ये अनमोल है, इसकी परवाह नहीं होती अवाम को। ये जो सानवी हैसियत रखती है उनकी हिफाजत करनी है, अपनी हिफाजत नहीं करनी लोगों ने। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई मुल्तान भर में जारी है। हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों को 500 तक जुर्माने किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमीशन मुल्तान पहुंच गया। प्रहलाद मंदिर का तफसीली जायजा किया। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमीशन की मुल्तान आमद पर प्रहलाद मंदिर का तफसीली दौरा किया। कमीशन में MNA रमेश कुमार, शोएब सडल और साकिब गिलानी शामिल थे। SDO आर्कियोलॉजी गुलाम मोहम्मद, ADCG कमरुज़्ज़मान कैसरानी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक अली भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रहलाद को जिस तरीके से यहाँ पे बांधता है और आग में डालता है और इस तरीके से उसको मालिक भगवान खुद आके बचाता है और वो मंदिर बंद हो, मगर आज ये खुशी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नए साल का जो सूरज है हमारे लिए एक उम्मीद की किरण की तरह आगे बढ़ रहा है। MNA रमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि प्रहलाद मंदिर की जल्द तामीर की जाएगी ताकि अक़लियती बरादरी कदीम मंदिर में इबादत जारी रख सके। प्रहलाद मंदिर और कटास राज मंदिर की हालत ज़ार देखकर अफसोस हुआ। एवेक्यू ट्रस्ट के पास है, उनमें से प्रहलाद टेम्पल भी है, उसमें से कटास राज भी है और कल शाम को हमने विजिट किया है कटास राज टेम्पल। उसकी जो हालत देखी है बहुत अफसोस हुआ। MNA रमेश कुमार का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े मंदिरों की 15 दिन के अंदर जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। हुकूमत से इस मंदिर की तामीर के लिए फंड्स का मुतालबा भी किया जाएगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने BA और BSc के नताइज का ऐलान कर दिया। तालिबात बाजी ले गईं। सना रहमान ने 664 नंबर लेकर BSc में पहली पोजीशन हासिल कर ली। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने पोजीशन होल्डर्स के एजाज में सजाई तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद बशीर ने बताया कि इम्तिहान में कुल 28,627 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 9,113 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का मजमूई तनासुब 31% रहा। BA के इम्तिहान में 20,720 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 5,755 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 27% रहा। BSc के इम्तिहान में 7,907 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 3,358 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 42.51% रहा। वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि तालिबात बहुत काबिल है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं। फीमेल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन excels, especially when it comes to education and examination. But their contribution to the economic development of the country is negligible, even astonishingly in professions which are considered relatively more conducive. नताइज के मुताबिक पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस सरगोदा की तालबा सना रहमान ने 664 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। सना रहमान पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल परवेज अशरफ की साहबजादी हैं। मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा पोजीशन जैसी नेमत से नवाजा है। इस पोजीशन के लिए मैं अपने इदारे, अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर सबका बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनके अनकंडीशनल सपोर्ट ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। BA में पाइनियर साइंस कॉलेज बलवाल की तालिबा फारिया मुख्तार ने 632 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सुपीरियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा के तालिब
फिल्म मेसम अब्बास 624 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ये सारा जो एक टास्क था, ये जो मैंने ये परफॉर्म किया अल्टीमेटली और पोजीशन हासिल की है, तो इसके पीछे कोई एक साल या 2 साल की एफर्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही पीछे कांस्टेंट एफर्ट थी, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन से नवाजा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन वालों को 40,000, सेकंड पोजीशन होल्डर्स को 30,000 और तीसरी पोजीशन वालों को 20,000 नगद इनामात और खुसूसी शील्ड्स दी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के BA BSc के पहले सालाना इम्तिहानात में तालिबात ने मैदान मार लिया। तालिबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी वतन का नाम रोशन करने के लिए कोशा रहेंगी। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। इंडस्ट्रियल एस्टेट और चैम्बर ऑफिस के लिए राजी की अलॉटमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीजी खान के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद लतीफ खान पताफी, नायब सदर जाहिद निज़ाम, साबिक सदर ख्वाजा मोहम्मद यूनस, सरदार जुल्फ़कार अली खान, साबिक सीनियर नायब सदर तारिक इस्माइल कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल चैम्बर मोहम्मद मुजाहिद मलिक ने कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद और डिप्टी कमिश्नर अली एजाज टवाना से मुलाकात की। कमिश्नर ने कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए मौजा चुरहट्टा में राजी मुख्तस कर दी गई है, जिसका संग बुनियाद वज़ीर आला पंजाब रखेंगे। उन्होंने बताया कि तौसा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए राजी की निशानदही भी कर दी गई है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब फोर्ट मनरो समेत जनूबी पंजाब की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने तजवीज़ पेश की कि डीजी खान एयरपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए हुकूमत पेशकश करे तो वो सरमायाकारों को लाने के लिए तैयार है। अद्वियाती पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए महकमा फ्रूट एंड वेजिटेबल मुतहरिक हो गया। काश्तकारों की आगाही के लिए वॉक की गई। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। जनूबी पंजाब में अद्वियाती पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट मैदान में आ गया। लोगों की आगाही के लिए वाक का एहतमाम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल जमील गौरी का कहना था कि रवां सीजन में 550 कनाल पर अद्वियाती पौधों की काश्त की गई है। प्लान कर रहे थे कि शायद हम 30 कनाल जो है वो लगाएं, लेकिन 30 कनाल के एज कंपैरिजन हम 540 कनाल 3 अजला में बहावलपुर, खानवार और मुल्तान में 540 कनाल पे हमने जो है मेडिसिनल प्लांट्स लगवाए हैं, ईसबगोल, अलसी, कलवंजी, अजवाइन वगैरह। काश्तकार का रिस्पांस बहुत अच्छा है इस साल। वाक में शरीक एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब बाराकुल्ला और डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान शहजाद साबिर का कहना था कि कई अद्वियाती अजनास बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। कोशिश है कि हमारे काश्तकार खुद काश्त करें। तमाम चीजें इम्पोर्ट हो रही थी, तो हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ ही थे। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 के बाद इंपोर्ट्स वगैरह पे भी कोई पाबंदी आई है, तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम था कि हम लोगों को प्रमोट करें और इस तरफ लाएं कि वो ये पौधे उगाएं और इंडस्ट्री को अपनी जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जो हर्बल इंडस्ट्री है, उसको इस तरफ लेके आएं। हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कंपोनेंट है वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है और जिम्मेदारों की मुकम्मल रहनुमाई कर रहा है। और इसके अलावा डेमो प्लाट भी लग रहे हैं और जिम्मेदार को मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि जिम्मेदार इन फसलात को मैक्सिमम अडॉप्ट करें। आगाही वाक में मुल्तान डिवीजन के ज़रूरी माहिरीन ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से अलसी, तुलसी, इसबगोल, अजवाइन, किलवंजी और सौंफ की काश्त को फरोग देने के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। मुल्तान के तमाम थिएटर्स पर मारूफ कॉमेडियन जमील भुट्टा के लिए बेनिफिट शो लगाया गया। फनकारों, प्रोड्यूसरों, डायरेक्टर्स और थिएटर मालिकान ने भी ड्रामे के टिकट खरीदे। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। जवार बलोच ने मारूफ कॉमेडियन जमील भुट्टा की माली मदद के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमा कैसरानी को बेनिफिट शो लगाने की दरख्वास्त दी, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तमाम थिएटर्स में बेनिफिट शो लगाने का हुक्म जारी किया। पहली बार फनकारों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और थिएटर्स मालिकान ने टिकट खरीदे। फोकल पर्सन ऑफ द ड्रामा कैसरानी साहब ने और मुल्तान के तमाम आर्टिस्टों ने और तमाम थिएटर वालों ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने भी इसमें लब्बैक कहा कि एक फनकार रियल अगर प्रॉब्लम में है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे बेनिफिट शो करवाए, मुनक्कद कराए जहां वो इतना फंड लोगों को देते हैं। फनकार सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि परेशानी के दौर में भी खुशियां वो बिखेरते हैं। कॉमेडियन जमील भुट्टा ड्रामा शहनशाह में परफॉर्म कर रहे थे। घर जाते हुए इन्हें हार्ट अटैक हुआ। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी मोहम्मद उमर ने भी टिकट खरीदी और जमील भुट्टा की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ गूँ
کہ اللہ پاک جمیل بھٹا کو صحت عطا فرمائے اور یہ زوار بلوچ صاحب کی کاوشوں سے اور ان کی محنت سے یہ شو انشاءاللہ کامیاب جائیں گے۔ بینیفٹ شو سے حاصل ہونے والی تمام آمدن جمیل بھٹا کے علاج پر خرچ کی جائے گی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔